in the talk show. Akansha, welcome to this talk show. Akansha is the founder of Nav Ayurveda company, and she is taking care so much initiative apart from that. So I request you to Akansha, please introduce you to our guest in brief so that everyone should know about you. Thank you so much, Arjun. And I'm very thankful for you to providing me this platform to come and share my ideas. So my name is Akanksha Deshwal. I'm the founder of Navarve. We are working towards helping people in quitting substance addiction like alcohol, tobacco, chewing cigarettes, chewing tobacco, etc. Uh, in today's uh, in today's times in our country, there are more than 260 million people alone in India who are addicted to tobacco. There are more than 50 million people who are consuming alcohol very regularly, and more than million people who are using cannabis. Kar raha hai, that is really appreciated. And I personally, invite you in this talk show not because of just you are doing, because of the, exactly vision behind of your company, behind of your thought. That is the, somewhere what I feel very, very, very good and very, very outstanding as well. So Akansha, what do you think about one change if you would like to bring in wellness industry? What you will bring? In the wellness field, one change that I would like to have is, promoting more prevention. Like, we have a lot of cures, we have a lot of solutions, we do a lot of research and put a lot of money there. But what about preventing? Why do we not teach Ayurveda or naturopathy in schools? If we have that education from a very young age, then we'll have a very healthy generation. I'll give you my example. I suffered from constipation. It's a very, very bad thing for like 21 years. And due to that, I got so many problems. I got a lot of facial acne also. I got hair loss. I got low immunity, but no one ever told me. And when I was during COVID times, when I started practicing Ayurveda and yoga, I was able to get out of constipation. And eventually all these problems healed. And that, makes me feel that if I had started sooner, koi pehle bata deta, so my life would have been so much better. So this is what I want the wellness industry to, focus on, that we promote these healthy habits to schools also. So people from younger age only, they know what kind of habits they should have for a better life. Absolutely, absolutely, Akansha, well said. And obviously, जैसा कि हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे चाइल्ड, हमारे टीन एज का बहुत बड़ा रोल होता है आने वाले दिनों में हमारी सोसाइटी में, हमारे नेशन में। तो आयुर्वेदा को वहां पे एक राइट मैनर में इंट्रोड्यूस करना एक बहुत अच्छी बात है, और जिसके लिए मुझे पर्सनली जितना मैं अवेयर हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इसके लिए बहुत इनिशिएटिव ले चुकी है, चाहे वो आयुष मंत्रालय के थ्रू हो, चाहे वो काफी चीजें हो, और चीजें डेवलप हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव हो रही है। एंड इसके साथ साथ जब आप जैसे स्टार्टअप आके एक नई तरीके की पहल रखते हैं, एक नई तरीके की शुरुआत करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज के थ्रू, वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। तो मैं एज ए वेलनेस एंटरप्रेन्योर ऑलवेज कोशिश करता हूँ कि हम जितने वेलनेस एक्सपर्ट्स हैं जो एक अलग अलग डायरेक्शन में इनोवेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स टू वेलनेस डोमेन, चाहे वो आयुर्वेदा से हो, चाहे वो होम्योपैथिक से हो, तो जरूरी है कहीं ना कहीं उस थॉट को, उस मिशन को, इस विजन को लोगों के आगे लेके आना, ताकि लोग भी अवेयर हो। कभी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन हमारे बीच में ही होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो प्रॉब्लम खड़ी हुई होती है, क्योंकि सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है, कहाँ से एक्सेस कर सकता है इंसान, उसके बारे में उसको अवेयरनेस नहीं होती है। और इस टॉक शो का पर्पस ही अवेयर कराना। तो दैट इज द मेन थिंग। तो आकांक्षा, आई आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वेलनेस में ऑब्वियसली आपने एक पहचान बनाई है। आकांक्षा, कौन सी एक ऐसा आपको लगता है आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसके थ्रू आप वेलनेस में एक इनोवेटिव थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं? प्लीज अपनी कोई स्ट्रेंथ शेयर करिए जिसके कारण आप पैशनेट है इस चीज को करने के लिए। आई थिंक मैं दो स्ट्रेंथ मानती हूँ जो नव आयुर्वेद के अंदर है। सबसे पहली है, जो आयुर्वेद के अंदर ना एक कंसेप्ट है डाइजेशन का, जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, बहुत ज्यादा। हमारी हर मेडिसिन में इनफैक्ट एक एलिमेंट ऐसा होता है जो सिर्फ डाइजेशन के लिए होता है। मैंने मतलब हमारे वैद्य से भी पूछा था कि ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका ये आंसर यही होता था कि
अगर आपका डाइजेशन ही अच्छा नहीं है तो कुछ भी खिला लो, व्हाट इज द यूज। तो ये चीज जो है डाइजेशन को फोकस रखने की, चाहे वो डी एडिक्शन की मेडिसिन ही नहीं, हाँ, क्यों ना हो हमारी, उसके अंदर भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए चीजें हैं। और दूसरी जो नव आयुर्वेद की स्ट्रेंथ है वो है हमारी इंटेंट। हम बहुत ऑनेस्टली और बहुत डिवोटेडली आयुर्वेद को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आई एम डूइंग समथिंग इन आयुर्वेद, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग। आई विल ऑलवेज से कि आयुर्वेद हेल्प मी, मैं अपनी तरफ से उसको कुछ देना चाहती हूँ। नव आयुर्वेद अगर जब बड़ा होगा तो आई डोंट थिंक मैं क्रेडिट लेना चाहूंगी या जिसने भी हेल्प किया, आई विल गिव क्रेडिट टू आयुर्वेद ओनली, बिकॉज वो आया ही आयुर्वेद से है। तो इंटेंट हमारा यही है कि हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम आयुर्वेद ने जो हमें सिखाया है उसको आगे दे रहे हैं। और कोशिश ये होगी कि हम भी आयुर्वेद के लिए कुछ कर सके लाइफ में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और बहुत जरूरी है कि आयुर्वेद के थ्रू हम लोग चीजों को बेहतर बनाएं, क्योंकि आयुर्वेद एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। एंड मैं जैसे ऐसे ब्रेथ एक्सपर्ट, व्हेन आई डू माय सेशंस ऑन ब्रीदिंग, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे लंग्स, स्पेशली हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारा हार्ट, एवरीथिंग, सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है right information, right direction and right, time। किस समय पे, किस सही समय पे, किस सही डायरेक्शन के साथ, किस सही तरीके से, मेथड से हम अपने लंग्स को पंप कराएं, अपने लंग्स को फिक्स करें। तो आयुर्वेद में समय समय पर बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया गया है, जिसके थ्रू हम अपने लंग्स को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कोविड के टाइम क्या हुआ था, सारा का सारा गेम मोस्टली हमारे लंग्स का ही होता है ना। तो एज ए आयुर्वेद एक्सपर्ट, व्हाट डू यू थिंक आकांक्षा, कि लंग्स को बेटर बनाने के लिए हर रोज, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लीवर, राइट? तो मोस्ट ऑफ टाइम कई लोगों का जैसे फैटी लीवर भी होता है, या कई लोगों को एडिक्शन के कारण भी लीवर खराब होना शुरू हो जाता है। और आजकल तो एडिक्शन कुछ नहीं भी है, फिर भी लीवर बहुत जल्दी फैटी लीवर हो जा रहा है, या लीवर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग रही है। तो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके आपके नव आयुर्वेदा के प्रोडक्ट में कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जो लीवर के लिए स्पेसिफिक होता है? जी। तो हाँ, हमारा जो लिवर होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब प्योरीफाई करने के लिए, टॉक्सिन्स निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे पास एक लिवर केयर है जो हम देते हैं, जिसके अंदर काफी सारी जड़ी बूटियां हैं जो लिवर की फंक्शनिंग को बेटर करने में आपको हेल्प करती हैं। और उसके साथ साथ अगर हम प्राणायाम और योगा, जैसे हम एक आसना करते हैं जिसके अंदर हम अपने लिवर को अपने अंगूठों से प्रेस करते हैं, लिवर और पैंक्रियास की मसाज करते हैं। तो हम अगर इन दोनों को मिला के साथ में करें ना, तो कभी हमें लिवर की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ना कभी फैटी लिवर जैसी होगी, और होगी भी तो रिवर्स हो जाएगी। तो इसीलिए आयुर्वेद और योग दोनों को साथ में अगर हम करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट्स काफी अमेजिंग आते एब्सोल्युटली, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस किया, ऑब्वियसली, even in my family also, my mother was suffering related the liver challenge, and also I have gone through that complete process, और उसके बारे में अवेयरनेस हुई कि किस तरीके से लीवर से हमारा अमोनिया हिट होता है, और अमोनिया से हमारा ब्रेन हिट होता है, और ब्रेन से हमारी कंप्लीट कॉन्शियसनेस एंड ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होने लगती है एट द मोमेंट जब आपका अमोनिया ओवर हो जाता है। तो ऑब्वियसली आयुर्वेद, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम समय पे आयुर्वेदिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट शुरू कर दे, बिकॉज आयुर्वेदिक हमेशा टाइम लेता है, इट विल टेक टाइम। अगर हम समय पे मेडिसिन का ट्रीटमेंट शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उससे एक समय तक आके फिक्स कर देंगे सिचुएशन को, और या फिर उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेंगे। तो नव आयुर्वेदा में काफी ऐसी चीजें हैं जो फिक्स करती है। लेकिन जैसे आप एडिक्शंस के ऊपर स्पेशली बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, राइट, बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, तो किस टाइप के केस सबसे ज्यादा आपके पास आते हैं, जिससे आपको लगता है कि ये चीजें हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? किस टाइप के केस सबसे ज्यादा होते हैं जो आपके पास आते हैं। सबसे ज्यादा हमारे पास टोबैको के ही आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज प्रोडक्ट है हमारे इंडिया में। तो सबसे ज्यादा हमारे हैं? पास टोबैको के आते हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि टोबैको जो है वो सबसे मुश्किल है छोड़ने के लिए।
लाइक एक हम्म, 2012 में आई थिंक रिसर्चर्स ने अराउंड 12 स्टडीज को रिव्यू किया था, जिसके अंदर हम्म, उन्होंने पाया था कि अराउंड 18% पीपल अल्कोहल छोड़ पा रहे थे। 40% हम्म, से ज्यादा पीपल कैन लीव ओपियोइड्स और कैनबिस, बट सिर्फ 8% हम्म, लोग टबैको। तो टबैको इतनी हम्म, सिंपल चीज लगती है ना कि हाँ सिगरेट ही तो है, कितना मुश्किल होगा छोड़ना, बट सबसे मुश्किल ही वही होती है छोड़ना। बट जब हम उनको मतलब डोज पे डालते हैं तो शुरू में होता है कि जैसे बहुत लोग आते हैं, 6 साल से हो रहा है, 15 साल से सिगरेट पी रहे हैं, तो हमको शुरू में शुरू कराते हैं तो उन्हें 1 हफ्ते होते हैं या कुछ हो नहीं रहा, तो हम उनको ये समझाते हैं कि दिस इज समथिंग यू आर डूइंग इट सिंस 20 ईयर्स या 6 ईयर्स। अपना टाइमलाइन देखो। आई मतलब आफ्टर यूजिंग आयुर्वेद फॉर सो लॉन्ग, आई डोंट फील आयुर्वेद टाइम लेता है। उसके जो मतलब अच्छे इफेक्ट्स है ना, वो स्टार्टिंग दिखना शुरू हो जाते हैं विद टाइम, बट कंप्लीटली हील करने में उसको थोड़ा सा में टाइम देना पड़ता है। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि 6 to 8 मंथ्स आप रेगुलर लो। वैसे 1 मंथ के अंदर ही लोगों को चेंज फील होने लग जाता है, स्पेशली जो स्मोकिंग करते हैं, उनको लंग्स में बहुत गरम गरम लगता है, जलन होती है, तो वो उनको रिलीफ आने लग जाता है, और जैसे ही वो रिलीफ आना शुरू करता है वो उनका मोटिवेशन हो जाता है कि ठीक है हमें कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से हम हेल्प करते हैं कि टोबैको यूजर्स स्पेशली कि वो कंटिन्यूड रखें, क्योंकि निकोटिन एडिक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, और उसके अंदर जितना स्ट्रांग एडिक्शन है उसे उतना ज्यादा टाइम भी देना पड़ता है। पर टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके बेनिफिट्स नहीं दिखेंगे, आपको उसके बेनिफिट्स दिखना भी शुरू हो जाएंगे, और जब बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाएंगे तो एक मोटिवेशन बन जाएंगे कि आप और बेनिफिट्स लो। very nice. Good answer. Good answer. And Akansha, this answer will be very helpful. And जब आपने टोबैको की बात करी, मैंने ना बहुत टाइम पहले एक इनिशिएटिव भी चलाया था इन 2016-15 टाइप से, मिशन ड्रग्स फ्री इंडिया, ओके, जहाँ पे ऑब्वियसली मेरा फोकस बहुत सारी चीजों के ऊपर था, एंड मैं चाहता था सोसाइटी को हमें एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कहते हैं ना, प्रयास कर सकते हैं, हम अपना एफर्ट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। बीइंग ए यूथ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इस टाइप की चीजें एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होती है एक यूथ के लिए, उसके मिशन को, उसकी सक्सेस को, सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो आकांक्षा, टोबैको की बात करिए आप, तो अभी बहुत लोगों का मिथ होता है, स्पेशली टीन एज में, जब मैं टीन एज की कोचिंग करता हूँ तो ये चीज निकल के आती है कि सर हम हुक्का ही तो लेते हैं, टोबैको थोड़ी ना लेते हैं, हुक्का ही तो लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये हुक्का लो बच्चे ले रहे हैं आजकल, जो जो भी यूथ यूजर हुक्का ले रहा है, क्या हुक्का का जो टोबैको है वो भी हार्मफुल है? टोबैको इस मिथ मतलब को किसी क्लियर भी करिए। फॉर्म, हुक्का और टबैको ठीक है, सिगरेट और हुक्का में डिफरेंस आ जाता है, बट आई फील कोई भी चीज जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा रही है, जो आपको अच्छा नहीं फील करा रही है, वो हार्मफुल ही रहेगी। हमारे यूथ का प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ा क्या है, कि हमें ना कूल दिखना होता है। क्योंकि हमने जितने भी हम्म, अल्कोहल मतलब सिगरेट यूजर्स से बात की, उनका ये होता है कि कूल लगता है, मतलब अगर मैं छोड़ूंगा, अगर मैं दवाई लूंगा तो कूल नहीं लगेगा। तो ये जो हमने कूल बनाया है इमेज, कि ये करना कूल है, स्पेशली मूवीज में तो भले ही साइड में एक छोटी सी वार्निंग होती है, बट इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, तो वो वहां से आई है। वो कुछ भी ले रहे हैं आज, चाहे वो हुक्का ले रहे हैं, चाहे वो सिगरेट ले रहे हैं, चाहे वो अल्कोहल ले रहे हैं, वो भी जानते हैं कि अच्छा नहीं है बॉडी को। तो कोई भी चीज जो आपको हार्म कर रही है, वो आई थिंक आपको करनी ही नहीं चाहिए। इवन बहुत लोगों को कुछ किसी खाने की चीज से भी प्रॉब्लम होती है, तो शायद उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, शायद वो नहीं उसको डाइजेस्ट करना चाह रही, तो हमें उस चीज को कम कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपकी ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये किस तरीके से रोल प्ले करती है? लेट्स एग्जांपल, समबडी इज अ चेन स्मोकर, ओके, तो ये हम्म। प्रोसेस किस तरीके से चलेगा? हाउ अ पर्सन विल लीव देयर एडिक्शन? चैन स्मोकर किस तरीके से एकदम से छोड़ देगा वो दवाई खाते ही, या कैसे होगा, उसके साथ क्या होगा? और मैं उसे दवाई नहीं बोलूंगा, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, सप्लीमेंट, तो व्हाट विल बी हैपन आफ्टर दैट? तो बेसिकली जितने भी एडिक्शन वाले लोग होते हैं, तो हम उन्हें इस तरह से मेडिसिन देते हैं। बेसिकली हमारी मेडिसिन में 15 हर्ब्स हैं, जिनके बहुत सारे टाइप के काम हैं। कुछ हर्ब्स आपको कामनेस देती है, कुछ हर्ब्स आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालती है, बहुत सारी हर्ब्स आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ, सब पे काम करती है। तो जब इंसान वो मेडिसिन लेना शुरू करता है, तो ऑब्वियसली उसको शुरू में इतनी जल्दी वो शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि
जो उसका एडिक्शन है निकोटिन लेने की, उसकी जो अर्ज है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हम कहते हैं कि आप कंटिन्यूड रखो। फिर क्या होता है, धीरे धीरे एक तो बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं। जब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं तो आपको बहुत शांति मिलती है। आपने सुना होगा कि मतलब डिटॉक्स करने से एकदम इंसान शांत होता है। तो पहला एक्शन उसका होता है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल। दूसरा, आपकी जो अर्ज है, बेसिकली ये दवाई लेनी ही तब है जब आपको अर्ज आती है। हम बोलते हैं कि हमारे जो वैद्य हैं वो जब किसी को भी मतलब कंसल्टेशन देते हैं तो यही बताते हैं कि जब भी आपकी अर्ज हो आप उसको टंग पे ले लो और आप 10 मिनट वेट करो। अगर 10 मिनट में आपको ओके। ठीक नहीं लगे तो ठीक है, थोड़ी देर बाद अगर, क्योंकि एडिक्शन ऐसी चीज है कि अगर आप इसको रोकोगे ना कि नहीं 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 करना, तो उसका बहुत ज्यादा मन होगा कि अब तो करना ही। तो हम बोलते हैं ठीक है, एब्सोल्युटली। 10 मिनट आप वेट करो। नहीं होता है तो अब आप जैसा आप चाहते हो कर सकते हो, बट कोशिश करो इसे कंसिस्टेंट लेने की। जैसे जैसे आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे, आपकी बॉडी से के ऑर्गन्स अपने आप को हील करना शुरू करेंगे, आपका दिमाग शांत होना शुरू करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी वो जो अर्ज है उसको लेने की वो कम होने लगती। तो हम इस तरह से देखते हैं कि हम देना शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोगों का खुद का मतलब आगे से मन नहीं होता कि हाँ कम कर दी, अब इतना नहीं हो रहा है। तो वो इस तरह से वर्क करता है। मतलब आयुर्वेद में हर चीज होलिस्टिक ही होती है, वहां कोई मतलब हम एक चीज को टारगेट नहीं करते। हम समझते हैं कि एडिक्शन में भी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। चाहे हम सिगरेट पी लें, हम लंग राइट। से रहे, लेकिन यहाँ से वो पूरी बॉडी में जाएगा और हर एक पार्ट को अफेक्ट करेगा। तो हर एक पार्ट को उसकी एब्सोल्युटली। टॉक्सिन से, उसके टॉक्सिन्स हर एक पार्ट से निकालना भी बहुत जरूरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि किसी भी एडिक्शन को हम किस तरीके से एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं या उस कौन से फेज है। और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि डिफरेंस, क्योंकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टोबाको तो हुक्का एक अलग चैलेंज है। देन अब इलेक्ट्रॉनिक काइंड ऑफ सिगरेट्स वगैरह भी आ गई है ना, तो वो सारी चीजें भी हैं। एंड समहाउ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर कोई भी तरीके की एडिक्शन है तो वो गलत है ही है, ऑब्वियसली बात है। मेरा डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, आकांक्षा, कभी आप किसी चीज के एडिक्टेड हुए हो? है। मतलब बचपन और से मेरा काफी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ सीखने में ही रहता। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं खाली बैठी हूँ। मैंने कथक सीखा, मैंने थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी भी सीखा था खुद से। मेरे को मैथ्स बहुत पसंद था। तो जब आप इंसान हाँ, किसी ना किसी चीज में बहुत ज्यादा अपने दिल से इन्वॉल्व होता है ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। जैसे मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी कि जब हम रिसर्च टाइम पे थे, जब हम लोगों से बात करते थे, तो बहुत बार लोग बोलते थे कि यार मतलब ऐसा लगता है कि कुछ किया नहीं लाइफ में तो ऐसे बुरा लग जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता हूँ और फिर मैं सिगरेट जलाने चला जाता। तो कहीं ना कहीं वो जो दिल में मतलब हमारे इमोशंस होते हैं ना दबे हुए, उनको और दबाने के लिए हम ये सब चीजें भी यूज करते हैं। तो जब हम, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद को ना जो चीजें हमें अच्छी लगती है उसको करें ज्यादा। अगर हमारा मन खराब हो रहा है तो ये नहीं सोचा ठीक है फ्यूचर तो चलो जो है, लेकिन आज में जीना बहुत जरूरी है। तो जो अच्छा लगता है वो करते रहो ना, तो ये सब प्रॉब्लम मतलब चीजों पे ध्यान जाना बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। इमोशंस रिलीज करना बहुत जरूरी है हम सभी लोगों का, क्योंकि जब हम इमोशंस रिलीज करते हैं तो समहाउ समवेयर हम लोग अपने आप से कनेक्ट करते हैं और अपने अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। और जब हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो एट दैट मोमेंट हमें समझ आता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट फॉर अस। ओके, वैसे तो इस दुनिया में कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता मेरे हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंसान कुछ भी कर रहा है उसके पीछे एक सिचुएशन होती है, एक सरकमस्टांस होता है। लेकिन आपने जैसी एक बात बोली, मैं बस यहाँ यही ऐड करना चाहता हूँ कि इमोशंस को रिलीज करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि कई बार लोग उस एडिक्शन के कारण उसको दबाते हैं, है ना, उसको उसको अंदर रखते हैं, दबाते हैं और उसके थ्रू फिर रिलीज करने की कोशिश करते हैं। लाइक एक सॉन्ग था ना, मैं जिंदगी का दर्द धुएं में उड़ाता चला गया, देवानंद का, राइट। तो इट्स लाइक दैट कि वो दर्द ही धुएं में उड़ रहा है, इमोशंस बह रहे हैं, तो वो धुएं की जगह वॉइस से रिलीज करिए, अपने आप से बातें करिए और कोशिश करिए, अगर कोई अच्छा दोस्त नहीं है आपकी जिंदगी में, आपकी दुनिया में, आपकी लाइफ में, तो कम से कम आज की टेक्नोलॉजी का यूज करें, कैमरा खोले, अपने आप से बात करें।
बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप से बात करोगे तो समझ आएगा आप अपने आप से आंखें मिला पा रहे हो कि नहीं मिला पा रहे हो, है ना। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, इसलिए मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि इमोशंस रिलीज करना बहुत अच्छी बात है। और आपने भी ऐसा ही करा, आप अपने आप से कितना कनेक्टेड है, ने अपनी हॉबी, अपने कहते हैं ना, अपने इंटरेस्ट को जिंदा रखा, पैशन को जिंदा रखा। दैट्स हाउ यू आर हियर राइट नाउ, कांक्षा। एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे यू आर डूइंग, इट्स आउटस्टैंडिंग। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, कांक्षा, कि कौन सी ऐसी एक एक हॉबी जो आप सबसे ज्यादा खाली समय में एंजॉय करते मेरे फेवरेट तो है डांस करना। मैंने कथक सीखा हो? था। अच्छा जी। और वेरी नाइस। मतलब बहुत ही सुंदर लगता है। जब भी मतलब मन ऐसा होता है थोड़े दिन पहले ही, जब भी ऐसा खुशी, जब खुशी होती है ना, तो सबसे ज्यादा मन करता है कि डांस करो। और जब मन खराब होता है तब भी। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज मतलब फिजिकल एक्टिविटी करने से एक तो इमोशंस अच्छे से निकल ही जाते हैं। साथ में कथक के अंदर एक डेप्थ है, मतलब वो जो गाने, वो जो बीट्स होती है, उनपे जो आप ध्यान से सुनते हो, आप उनको कनेक्ट करते हो, तो एक अलग ही मतलब इमोशंस आ जाते हैं। तो आई थिंक मेरा एक उसी तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है कि मैं मतलब कथक अभी भी मतलब करती हूँ कि कोशिश कभी ना कभी टाइम मिल जाए तो थोड़ा बहुत जो याद है उसको प्रैक्टिस कर लिया, या देख लिया, या हमारी जो गुरु है उनके पास चले गए। तो कथक से तो से दिल से जुड़ा हुआ है वो मेरे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका आपका इंटरेस्ट कथक है, और कथक ही आपको बूस्ट करता है, मोटिवेट करता है हर रोज, जो मुझे समझ आ रहा है ना। और इसलिए आप मेंटली इतने फिट हो और इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड हो, सो दैट यू नो यू आर मैनेजिंग थिंग्स एज पर व्हाट यू वांट। So, Akansha, that is very great, and obviously in future we as a live donor also want कि at least आपके जो supplements है उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाके लोगों तक पहुंचाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों तक वो पहुंचे और ज्यादा, और लोग उसको एक्सेस कर सके और इस चीज से ओवरकम कर सके। एक सजेशन टीनेज के लिए, यूथ के लिए, या जो अभी एडिक्टेड नहीं हुआ है बट कहीं ना कहीं हर रोज उसको इन्वायरमेंट से अट्रैक्शन, टेंशन हो रहा है, एक सजेशन, वो कैसे अपने आप को रोक सकता है? एक तो आपने बताया सेल्फ में अपने आप को बिजी कर ले, दूसरा उसका इन्वायरमेंट ऐसा है और हर रोज वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा है उससे, और अभी तक ही और शी इज नॉट इनटू दैट। तो कोई एक सजेशन वो अपने आप को रोक सके एडिक्टेड होने से। एक सजेशन तो मैं यही बोलूंगी कि अगर लाइफ एंजॉय कर, एक बार ना, अगर कोई भी ये चीज शुरू करने वाला होता है ना, तो एक बार उनसे पूछे जो ये 10 साल 20 साल से कर रहे हैं। वो कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ करो, बहुत अच्छी बात है। हमने इतने लोगों से बात की कि वो सब बोलते हैं कि यार छोड़ना तो चाहते हैं, क्योंकि वो लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाते। तो वही होगा कि अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, तो एंजॉय करने के लिए आपको एक तो यहाँ शांति चाहिए और एक यहाँ शांति चाहिए। तो इन दोनों शांति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सोचो एंजॉयमेंट के बारे में, क्योंकि हम बहुत एंजॉयमेंट से मोटिवेट होते हैं। तो अगर एंजॉय सही बात करना है। है, अगर जैसे लोग बहुत पैशनेट है आजकल कि हाँ पैसे ज्यादा हम्म। कमाने हैं, डबल इनकम चाहिए, हाँ। सेकेंड इनकम भी चाहिए, इधर हम्म। इन्वेस्ट करना है, हम्म। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा डबल कर रहे हो, कितना भी टाइम्स कर रहे हो, बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो ये है। तो ये चीज हम्म। तो अब हमें समझनी पड़ेगी कि अगर एंजॉय करना है लाइफ, इसका ध्यान रखें। जिसका ध्यान परफेक्ट। रखेंगे तो अच्छे से एंजॉय होगा, वरना जल्दी वेरी गुड। फिर बुढ़ापे जैसा फील होने लगता है। Absolutely, Akansha, and we should take care of self. Self is very important. So, Akansha, really, it was very, very good. Before closing, would like to ask one thing. What is your thought about our initiative from Lives Honor for this talk show? जब आपका मैसेज आया आई वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज क्या होता है कि पीपल टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, पीपल वांट टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, स्पेशली दीज डेज, सेकंड इनकम, ये करो वो करो, बट वही बात है, कैसे एंजॉय करो वो सब। सब तो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? क्या मतलब हम उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे जो भी हमारा रिजल्ट होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की शांति। जैसे आप, मैंने अपने लाइफ जोनर में देखा था, और आप लोग वेलनेस रिट्रीट्स कराते हो,
तो मुझे काफी अच्छा लगा था कि मैं ऐसे टॉक शो में जा रही हूँ जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें, इंजॉय करें। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग ये करते हो। स्पेशली वेलनेस रिट्रीट का जो आइडिया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे लोग वेकेशंस पे जाते हैं, तो वेकेशंस पे जाते हैं तो सोचते हैं हम ना अल्कोहल पी लेंगे, हम थोड़ी देर यहाँ घूम लेंगे, ये खा लेंगे। बट क्या वो वेकेशन से वापस आके उनके पास वो एनर्जी डबल होगी? मतलब आई डोंट थिंक। बट वो ऐसी वेकेशन पे जाए, जैसे आप लोग वेलनेस रिट्रीट कराते हो, जहाँ वो योगा आयुर्वेद कर रहे हैं, जहाँ वो एक्चुअली में अपनी बॉडी को रिजुविनेट कर रहे हैं, तो वो जब वेकेशन से आएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी डबल हो जाएगी और उनकी बॉडी भी बहुत खुश होगी। तो आई रियली एब्सोल्युटली। अप्रिशिएट जो आप कर रहे हो। एंड आई होप मतलब लोग इसको मतलब अडॉप्ट करें, और भी ज्यादा लोग करते हैं बट और भी ज्यादा करें, इन चीजों की तरफ ज्यादा थैंक यू अट्रैक्ट, सो मच। ये कूल चीजें बन जाए, नई कूल चीजें जो होती है। Thank you so much, Akansha, for your words. And I also personally believe wellness retreat is one of the good resource, basically, good source to regenerate yourself, to transform yourself. And from last 8 to 9 years of, complete wellness domain experience, I personally believe you can't transform yourself at a one place. You will have to be moved. You will have to go into the travel therapy. You will have to be moved into the don't move just physically, move emotionally, mentally, spiritually as well, so that you can empower yourself and you can be more intellectual. So that could be happened by the wellness retreat only. And in future I would also invite you to come in our retreats also and just explore your products there, so that people can access that product during the retreat as well, right? थैंक यू सो मच। So एक्चुअली जब आपने Akansha. बताया था आई वांटेड टू कम माई सेल्फ। Yes, yes, please. You're most welcome. Our complete lives and our family will welcome you for this such a great platform. And thank you so much, Akansha, for joining today's session. Today retreat, by the way, a retreat session, not retreat or not session. So it's a talk show. So thank you so much for joining this talk show. And this talk show was also important. And obviously, without your words, without your information, without your insightful knowledge, it was not complete. And I'm sure our all viewers, it will be very helpful for all of you. And Akansha's thought, Akansha's suggestion, Akansha's direction, please follow it. And apart from that, if you would like to reach to Akansha, go to her website, Nav Ayurveda. You can Google, definitely you will get that website link, Nav Ayurveda, NAV, Nav Ayurveda, and it will be helpful. You can buy your product from there also on their website, or you can DM their team as well. And thank you, Akansha, for joining us, and we wish for the contribution in future also. कोशिश करेंगे हम कोलैबोरेट करके आगे और अच्छे से लाइव दोनों नव आयुर्वेदा मिलके काम करेगी। एंड इसके साथ साथ हम लोग टॉक शोज के एपिसोड्स भी करेंगे। आज एक ब्रीफ टॉक शो था, हम इन फ्यूचर में लेटर ऑन एपिसोड्स के साथ आएंगे, सो दैट हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रीच करा सके। थैंक यू कांचा, एंड थैंक थैंक यू यू सो मच एवरीवन फॉर सच अर्जुन। ए वंडरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक टेक केयर। थैंक यू।